Good evening to all of you. Good evening. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform for online education. So let's take the advantage of this platform. Okay. So welcome again. My name is Manish Kumar Shivare. I have 9 years of teaching experience with a specialization in thermal engineering. I'm also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018. I've done my MTech from NIT Hamirpur in 2011 in computational fluid dynamics and heat transfer. Two times I scored GATE in 2009 and in 2014. This is my profile ID on academy.com /@mksivare. Okay, and wish you all very happy Diwali. First of all, wish you all very happy Diwali. And this Diwali, light the lamp of knowledge from Unacademy platform from our team. So come to the app icon of this platform. This is the Unacademy learning app. Download this app from your Apple Store and Play Store and you'll get free live classes are there. Yes, friends, free special live classes for every subject, every gate, every exam. Okay. Rather than this, what you are getting, daily live classes are there. You can chat with your educator and engagement इससे better होगा, doubts सारे clear रहते हैं. And you can also participate in poll, live test and quizzes. इसका important role है. Suppose that आपने कोई subject complete कर लिया है और अभी आपको लगता है कि now you will perform 100% in final exam. So I'll suggest to self-evaluate yourself at this platform with the help of live test and quizzes, because it will exactly tell you where you are existing. Okay? Self analysis होगा यहाँ पे. Structure courses mean that all subjects will be completed as per given syllabus, but sequence of subject will be like पहले आपके basic फिर आपके advanced and application. Okay, ऐसे में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट रटने नहीं पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे, मीनिंगफुल रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको देखो प्लानिंग मिल गया, यहाँ पे आपको सेल्फ इवेल्युएशन मिल गया, और ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव वीडियो ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. दिस इज fee structure or subscription price. There are two category, plus and iconic. So plus category के भी बात करते हैं. There are fee structure like this as shown here. For 24-month fees is 44,000. For 18-month fees is 38,500. तो ये आपकी different fees है. And if you are using this code is like promo code MANEESH. If you are using this code, you will get 10% of discount. 10%, exactly 10% of discount आपको मिलने वाला है इन ऑल सब्सक्रिप्शन. कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर होने वाला है, इट विल बी लाइक दिस एज शोइंग हियर. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. जितने भी आपके फी स्ट्रक्चर्स होने, उनमें ऑल structure taxes are included, all kind of taxes are included here. Okay, now come to the second feature of Unacademy, iconic का जो फी स्ट्रक्चर है आपका 12 month, 24 month. The fees is 45,000 and 60,000. For 12 month fees is 45,000. For 20 month it's 60,000, not 90. And if you are using the code like promo code, you are using educator code which is MANEESH Manish, you will get 10% of discount again here. Okay, आपको यहाँ फिर से 10% का डिस्काउंट मिलेगा. 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस कितनी हो जाएगी आपकी,
ये फीस हो जाएगी। ओके, एंड ऑल एवरीवेयर टैक्स इज इंक्लूडेड है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस। प्लस में आपको क्या मिलने वाला है? इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स आ रहे हैं। आइकॉनिक में आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके बाद आपको एडिशनल में और क्या मिलेगा? पर्सनल कोच। पर्सनल कोच इज ये जो आपका है ये आपका यूनिक फीचर्स है। यूनिक फीचर्स, पर्सनल कोच मीन्स someone will be there who will always with you at every place, at every place mean that at every situation। ओके, आपको डिमोटिवेशन, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, समवन विल बी देयर। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, समवन विल बी देयर हु विल गाइड। सो एवरी स्टेप्स समवन विल बी देयर हु विल काउंसिल यू। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, इंडिविजुअली टेस्ट एनालिसिस होने वाला। स्टडी प्लानर, in that someone will be there who will behave like a guardian, like a senior, like a guide। okay, prepared study material, already जो आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है वो प्रिपेयर्ड है। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो पहले रिवर्स साइकिल की बात करते हैं। एज यू नो दैट जो साइकिल्स होती है वहां पे डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसी भी साइकिल की, दैट डजंट मैटर, हम कोई कार्नोट और अभी इंजन की साइकिल की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी हम थर्मोडायनामिक डायग्राम सपोज दैट टीएस बना दिया, हमने बोला ये आपकी साइकिल है। इफ दिस साइकिल इज क्लॉकवाइज, दैट इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइकिल को हम बोलते हैं क्या? पावर साइकिल बोलते हैं, पावर साइकिल। क्लियर है? मतलब विच विल प्रोड्यूस पावर। इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर कोई साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसे बोलेंगे क्या? रेफ्रिजरेशन साइकिल। देन इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, नाम से हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई सी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल लेंगे वो सारी कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल या रिवर्स्ड साइकिल। नाउ अब आपने जो भी साइकिल पढ़ी है, जैसे ब्रेटन साइकिल पढ़ी है, तो उसकी रिवर्स हो गई रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल आपकी पावर प्रोड्यूस करती है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल आपकी पावर कंज्यूम करती है। कार्नोट साइकिल आपकी पावर प्रोड्यूस करती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल आपकी पावर कंज्यूम करती है। रैंकाइन साइकिल आपकी पावर प्रोड्यूस करती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल आपकी पावर क्या करती है? कंज्यूम करती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका रिवर्स साइकिल से मीनिंग है, ये रिवर्स साइकिल जो है वो पावर कंज्यूम करेगा। रिवर्स साइकिल क्या करेगा? पावर कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूमिंग साइकिल है ये आपकी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका रेफ्रिजरेटर आपने घर पे लगाया और रेफ्रिजरेटर लगाने के बाद आपके घर का बिजली का बिल आधा हो गया, है तो नहीं। रेफ्रिजरेटर लगाने के बाद क्या होगा? आपको बिजली देना पड़ेगा। ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, ठीक है ना। यही डिफरेंस है आपका बेसिक। व्हाट डज इट मीन बाय रिवर्स साइकिल, व्हाट डज इट मीन बाय साइकिल। तो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं तो मोस्टली हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, ठीक है ना। और वो सारी साइकिल आपकी पावर प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? तो बस इतना ही सा था रिवर्स साइकिल। नाउ कम टू द पॉइंट, रिवर्स कार्नोट साइकिल, सॉरी रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल, एक्चुअली ये साइकिल का आपका यूज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल का आपको पता है कि ये जो साइकिल होती है इसकी इफिशियंसी जो होती है, सॉरी कार्नोट साइकिल जो होती है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर है? और इसकी जो इफिशियंसी मैक्सिमम होती है, अगर हम इसको पीवी डायग्राम बनाए तो हम क्या करेंगे? ऐसे 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 ये बनाएंगे आप, 1 2 3 4। गलत हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज साइकिल दे दिया है। हमारी एक्चुअली में क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है। क्लियर है? यहाँ पे आप बोलेंगे 1 2 3। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, 2 से 3 आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक, और ये आपका क्या हो गया? आइसोथर्मल। ओके, इसी का अगर हम टीएस डायग्राम बनाएं
तो यू नो वेरी वेल कि अगर हम टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है जो टीएस डायग्राम होता है सिर्फ रेक्टेंगल होता है। और हम कार्नोट साइकिल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका जो इफिशियंसी होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो रिवर्स कार्नोट होगा, जो रिवर्स कार्नोट होगा उसकी केस में आपका जो सीओपी होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल होता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी हम इसीलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये रेफरेंस साइकिल हो जाता है। क्या होता है? रेफरेंस साइकिल। मतलब हम बता सकते हैं कि एट दिस टेम्परेचर लिमिट जो मैक्सिमम इफिशियंसी मैक्सिमम सीओपी होगी वो सिर्फ यही होगी। क्लियर है? ऐसा करके हम बता सकते हैं। ओके, तो ये आपका 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे रिमेंबर दिस पॉइंट की जो रिवर्स कार्नोट साइकिल में हीट इंटरेक्शन की बात करें, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा। हीट इंटरेक्शन, यहाँ पे आप हीट एब्जर्व करते हो, क्यू ए हीट एब्जर्व किया। ऐसा करने के लिए आपको वर्क देना पड़े डब्ल्यू इनपुट। यहाँ पे आपने वर्क दिया डब्ल्यू इनपुट, हीट इन्होंने ऑब्जर्व की क्यू ए और हीट रिजेक्ट कर दी टू द सराउंडिंग। तो कंडेंसर हीट रिजेक्ट की है, क्यू आर रिजेक्शन हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सीओपी निकालते हैं। यू नो वेरी वेल, सीओपी इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इसकी वैल्यू होती है डिजायर्ड इफेक्ट ऑन रिक्वायर्ड इनपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है ना? यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, क्यू ए। क्यू ए इज द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो आपको वर्क देना पड़ेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू ए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू ए। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, हाँ इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी चाहे तो लिख ले। क्यू ए इज द लोअर टेम्परेचर, तो हमने बोला टी लोअर इज अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ये आपका आ जाता सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सीओपी फॉर रेफ्रिजरेटर आया, ठीक है ना? सीओपी फॉर रेफ्रिजरेटर ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल की। रिवर्स ब्रेटन साइकिल के केस में जो आपकी इफिशियंसी होगी कार्नोट साइकिल के केस में, जो आपकी ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कार्नोट। रिवर्स ब्रेटन की जो सीओपी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू रिवर्स कार्नोट। और रिवर्स कार्नोट को ही हम बोलते हैं जूल साइकिल। रिमेंबर दिस पॉइंट, कई बार आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और एक चीज और इसी को हम ये भी बोलते हैं बेल कॉलमैन। इसी को ही हम बेल कॉलमैन भी बोलते हैं, बेल कॉलमैन, है ना? बेल कॉलमैन साइकिल। ये तीनों जो है नाम है एक ही साइकिल के हैं। इस साइकिल का सिर्फ आप लाइन डायग्राम देख लो, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? अगर हम इसका पीवी डायग्राम की बात करेंगे, यहाँ पे जो हीट इंट्रैक्शन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये आपका कर्व लाइन है। ये आपका प्रोसेस हो गया 1 2 3 4। रिवर्स है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और ये आपका आ गया टीएस डायग्राम। ये आपका आ गया टीएस 1 2 3 4। क्लियर है ना? वन से जो टू डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी और यहाँ पे भी आपकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो इधर हो रहा है, लोअर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो गया आपका क्यू ए। और यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट होगा वो हायर पे होगा क्यू आर। ऐसा करने के लिए आपको वर्क देना पड़ेगा, जो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको डब्ल्यू आई। ऐसा ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 से 2 जो आपका होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, आप यहाँ पे वर्क देते हैं। हीट यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? आपने बोला क्यू रिजेक्शन इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। ये आपका क्यू एब्जर्व कर रहा है, तो जब क्यू एब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एज यू सोइंग। क्लियर है? तो ये आपका बेल कॉलमैन का आपका क्या है, बेल कॉलमैन का टीएस एंड पीवी डायग्राम है। ये पीवी है एक्चुअली, पीएस नहीं है, पीवी एंड टीएस डायग्राम। ठीक है? इसका एफिशिएंसी का बात करेंगे
इसका एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर के केस में आप क्या लिखेंगे, हीट क्यू ए अपॉन वही आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो वैल्यू आएगी वो आती है 1/T2/T1 -1। ठीक है ना, ये तो अभी हमने कराई थी। ये वैल्यू क्या आती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये वैल्यू आएगी। नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर प्रेशर रेशियो की बात करेंगे तो प्रेशर रेशियो मतलब आरपी इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो, मतलब जो ज़्यादा प्रेशर है P2/P1, है ना। इसके टर्म्स में अगर वैल्यू आएगी तो वो आएगी 1/RP की पावर, ये फॉर्मूला एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये आपको याद कर लेना चाहिए, फॉर्मूला चार्ट में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। Γ-1/Γ-1, ये क्योंकि आप इसको हर बार डिराइव नहीं करेंगे, अगर इसका न्यूमेरिकल आया बेलकॉनमेन का तो इसी से आएगा, ठीक है ना। वेयर आरपी इज इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू CP/CV, ओके। एंड एक रिलेशन और लिख लो, यहाँ पे जो आपका T2/T1 है वही है आपका T3/T4, क्लियर है, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4, क्लियर है। और अब इस साइकिल के एप्लीकेशन की बात आती है। इस साइकिल का जो एप्लीकेशन है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। इसका जो एप्लीकेशन है वो है आपका एयरक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि इस साइकिल में आप एयर यूज करते हैं और एयरक्राफ्ट के केस में जो आपका एक पैरामीटर निकालते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि हम बोल दें कि ये COP, ये इंजन बेटर है या ये इंजन, तो आप बोलेंगे ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज दैट वेट टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये जो रेशियो होता है ये कम होता है, ये लो होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, इसको एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। मतलब पर टन रेफ्रिजरेशन लोड अगर हमें देखना है तो अगर हम VCRS सिस्टम लेते हैं और आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेस्ड सिस्टम लेते हैं तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल में जो वेट है वो कम आएगा। तो जब आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक ले जाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, कैरिंग कॉस्ट। तो हम चाहते हैं कि उसका वेट कम हो ताकि हमारी कैरिंग कॉस्ट जो हो जाए वो रिड्यूस कर जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, अगर रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेस्ड सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जितने भी आप देखते हैं, जितने भी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो सारे क्या होते हैं, इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे, आप कुछ लिख देते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखने वाले हैं, सिंपल इवेपरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरा आप बोलते हो बूट स्ट्रैप, नाम सुना होगा इसका, बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट आप बोल दो बूट स्ट्रैप इवेपरेटिव, बूट स्ट्रैप इवेपरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप बोल दो रीजनरेटिव। ये सारे जो है ना, ये सारे जो है आपके रीजनरेटिव, ये सारे जो है आपके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और ये सब उसी पे बेस्ड है, ब्रेटन साइकिल पे, ठीक है ना। और लास्ट रिड्यूस्ड एम्बिएंट,
रिड्यूस्ड एम्बियंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। ये सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसी पे बेस्ड है। रिमेंबर वन मोर थिंग, इनको जो हम कंपैरिजन करते हैं, इनको जो हम कंपैरिजन करते हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डार्ट ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर होता है ये एक्चुअली में टेम्परेचर होता है ऑफ एयर व्हेन इट इज लीविंग द एक्सपेंशन डिवाइस व्हेन देयर इज नो मॉइस्चर। अगर आपका सपोज दैट एयर लिविंग कंडीशन में है फ्रॉम द एक्सपेंडर डिवाइस या टर्बाइन एंड इफ देयर इज नो मॉइस्चर देन इट इज कॉल्ड एज डार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो डार्ट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कूलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। क्लियर है। नाउ रिवर्स्ड बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रिवर्स्ड ब्रेटन एंड वीसीआरएस साइकिल। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल में जो है आपका जो फ्लूइड होता है वो एयर होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो है एयर। और जबकि वीसीआरएस में आपका डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट होते हैं जो आपके हमने सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट के नाम से दिया था, जैसे R11, R12, R22, R134 है ये रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। फिर सेकेंड थिंग कि जो हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन है रिवर्स्ड में वो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि वीसीआरएस में जो हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन है वीसीआरएस, अच्छा कारनॉट में हम चले गए थे, ठीक है ना। तो रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल में सपोज दैट रिवर्स ब्रेटन साइकिल में आपका एयर रेफ्रिजरेशन एयर एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। वीसीआरएस में आपका कई सारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होते हैं। रिवर्स्ड ब्रेटन में आपका ओपन सिस्टम हो सकता है, वीसीआरएस में आपका क्लोज सिस्टम होता है, कंपलसरी है। रिवर्स ब्रेटन में आपका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, वीसीआरएस में कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। रिवर्स ब्रेटन साइकिल में वेट रेशियो वेट पर टन ऑफ कूलिंग कम होता है, जबकि वीसीआरएस में वेट पर टन कूलिंग ज़्यादा होता है। रिवर्स ब्रेटन में आपका कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट कम होती है, जबकि वीसीआरएस में आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपके कंपैरिजन है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखना क्या है आपका, लिखना ही क्या है, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, एक तो ये हो गया और यहाँ आप बोल दो वीसीआर साइकिल, ठीक है ना। ये आपका ओपन सिस्टम होता है, ये आपका क्लोज्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एयर होता है, यहाँ पे आपका सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होता है। इसकी जो वेट होती है, वेट रेशियो ऑफ वेट पर टन, वेट पर टन क्या होती है, कम होती है। इसका वेट पर टन उसके कंपैरिजन में क्या होता है, पर टन ऑफ कूलिंग लोड ज़्यादा होता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपका कैपेसिटी इसकी कम होती है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। यहाँ पे नो लीकेज होता है, यहाँ पे आपका लीकेज भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मतलब यही सारा है, रनिंग कॉस्ट भी इसकी कम होती है, लो रनिंग कॉस्ट होती है क्योंकि रेफ्रिजरेंट लो रनिंग कॉस्ट, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का लीक होने का कोई चक्कर ही नहीं है, इसकी हाई रनिंग कॉस्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि रेफ्रिजरेंट ही पता चले फ्लो हो गया, फ्लो आउट हो गया, है ना। तो ये सारे आपके बेसिक से डिफरेंस है। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना।
आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस पूछता नहीं है। और रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके ये जो आपके रिवर्स ब्रेटन साइकिल के जितने भी हमने एयर रेफ्रिजरेशन या एयर क्राफ्ट में यूज़ होने वाले जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था, आपने इन सब का एक एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना है, ठीक है ना। एक बार सबका ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज। ओके, नाउ solve this question. First part is that coefficient of performance of refrigerator working on reverse Carnot cycle. देखो क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से कभी नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। तो जो भी क्वेश्चन है, अगर सपोज दैट आप नहीं कर पा रहे हो, हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आपने करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपने ही करना है। The coefficient of performance of refrigerator working on reversed Carnot cycle is 4. Reversed Carnot cycle. The coefficient of performance of refrigerator मतलब COP of R is equal to 4. The ratio of highest absolute temperature to the lowest absolute temperature. इन्होंने पूछा है highest upon lowest, इसका रेशियो पूछा है। ये आपको रेशियो बताना। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, आपने बोला COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, हमने रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बनाया, वर्क बनाया। T1 हायर टेम्परेचर ले लिया, T2 लोअर टेम्परेचर ले लिया, हीट रिजेक्ट कर दिया Q2, हीट रिजेक्ट कर दिया Q1। तो COP इज इक्वल टू ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या हो गया आपका, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q2 अपॉन W इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसको Q2 ओवर Q1 माइनस Q2। ये क्या हो जाएगा T2 ओवर T1 माइनस T2। यू नो वेरी वेल कि जैसे यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका आया 4 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 माइनस T2। आपने क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, T1 ओवर T2 ही तो पूछा है। आप क्या करो, T2 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन T1 ओवर T2 माइनस 1, और ये इज इक्वल टू क्या है, ये इज इक्वल टू 4। हो गया आंसर आपका। यहाँ पे आंसर क्या है, so that T1 minus T2, T1 upon T2 minus 1 is equal to 1/4। तो आपका T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/4। आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। आंसर आपका बी पार्ट आ गया। ओके, अगर आपसे रिवर्स में पूछा जाता तो बस इसी का रिवर्स आप बता देते, इसमें कोई दिक्कत किसी को, आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ another question, solve this question फटाफट। A refrigerating system operating on a reversed Brayton, remember this point, it's a reverse Brayton cycle is used maintaining 250 Kelvin। okay, तो देखो रिवर्स ब्रेटन साइकिल का हम डायग्राम देख लेते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल का हम डायग्राम देख लेते हैं। तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल का हम टीएच डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर 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 तीन जगह बात की, सॉरी रियली सॉरी। रिवर्स ब्रेटन साइकिल का आपने टीएच डायग्राम बनाया, हमने ये बनाया टीएच डायग्राम, देख लो ध्यान से, ये ओके, ये आपका लगभग बराबर है, ये डायग्राम में सिमेट्री नहीं है। ओके, आपने बोला 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 एक्सपेंडर, 4 से 1 इवेपरेटर। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है QA, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है QR। इन्होंने बोला है ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल
is used for maintaining 250 Kelvin. Remember this point, for maintaining 250 Kelvin. तो ये हीट एब्जॉर्ब करके हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट मतलब T4 पे एंटर करके T4 पे क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट है इसने हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड, फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T1 के बराबर होगा, T1 के बराबर होगा या T4 के बराबर होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, मेंटेनिंग द रूम टेम्परेचर, जो आपका रूम का टेम्परेचर होता है वो इसके इवेपरेटर के लीविंग टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे T1 इज इक्वल टू 250 Kelvin। If the temperature at the end of constant pressure, एक्चुअली कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग इज 300 Kelvin। इन्होंने बोला T3 का टेम्परेचर, कूलिंग कहाँ हो रही है, जहां रिजेक्शन हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो यहाँ पे T3 का टेम्परेचर है 300 Kelvin। राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रेफ्रिजरेटर इज 50 Kelvin। इसको समझना है आपको। राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर मतलब जहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, रेफ्रिजरेटर मतलब जहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे बोला 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो T2 का टेम्परेचर होगा इट विल, सॉरी T4 का जो टेम्परेचर होगा इट विल बी इक्वल टू T1 माइनस 50, देन इट विल बी इज इक्वल टू 200 Kelvin। इन्होंने बोला है कि रेफ्रिजरेटर पे इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर इज 250। तो इनिशियल टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, क्लियर है, 200 Kelvin। देन द नेट वर्क ऑफ कंप्रेशन, then the net work of compression would be assume as air working substance Cp is equal to, Cp की वैल्यू इन्होंने बोली है, Cp is equal to 1 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्होंने क्या बोला, नेटवर्क बताना है, नेटवर्क। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, नेटवर्क बताना है तो आपने बोलना है कि नेटवर्क इज इक्वल टू क्या होगा, नेटवर्क W इज इक्वल टू H2 माइनस H1, therefore Cp into T2 माइनस T1, है। यहाँ पे T2 आपको पता होना चाहिए, तो एज वी नो दैट T1 अपॉन, सॉरी T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये वैल्यू ये हमने बताया, रिवर्स ब्रेटन साइकिल में भी बताया होता है। इस प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से आप देखो T3 की वैल्यू क्या है 300 अपॉन T4 आपका 200, T2 आपका पता नहीं, ये आपका 250। यहाँ से देखो T2 कितना आ गया आपका, T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, मल्टीप्लाइड बाई 275, 375। क्लियर है, देख लो सही है। अगर 375 आ गया तो एक सेकेंड, ये आपका 300 था, ये आपका 50 मतलब 200 था।
राइज हुआ 250, 3/2। सेंटर का एक्सपेंस 375 ही आ रहा है। एक्चुअली क्या ना 350 आ गया आपका, केल्विन में आया। तो यहाँ से कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आएगी CP × T2 - T1 CP आना चाहिए 350 250। हम्म 300 टेम्परेचर तो सही लिखा है। द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग 300 केल्विन बिल्कुल सही है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रेफ्रिजरेटर इज 50, तो ये आपका 200 का, वो आपका 250 का। ब्रेटन साइकिल इज यूज्ड मेंटेनिंग 250। क्लियर है। अगर हम बोल दें कि 250 हो। हम्म, 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 चलो खैर, आपका ये जो आ गया T2 आ गया। T2 आने के बाद जब आपका W आएगा तो वो आ जाएगा कितना, W आपका आ जाएगा CP1 × 375 - 250, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1125, मतलब 125 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर 125 आया, 125 किलो जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे हो सकता है कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई हमसे, ठीक है ना। तो इस डेटा के हिसाब से जो वैल्यू आई वो ये आई है। यहाँ पे आपका कंप्रेशन ऑफ द वर्क आया। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो एज पर न्यूमेरिकल है, एक बार देख लेते हैं। रूम का टेम्परेचर 250, रूम का टेम्परेचर हमको ज़्यादा लग रहा है, 250 होना नहीं चाहिए। 250 कहाँ रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ना। अच्छा 250 50 300, क्या ये बराबर कर दें? अगर ये 300 खैर छोड़ो, जो भी है ठीक है ना। ये आपका यही वैल्यू आएगा इसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो सकता है इसमें कोई डेटा गलत होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सही है। ओके ना, उस न्यूमेरिकल में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, नाउ लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको बोला गया, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है। उस न्यूमेरिकल में वो जो डेटा है उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। बेल आइकन बटन, जूल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, तीनों नाम दे दिए, बहुत बढ़िया। और गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द चूजिंग कोड। इन्होंने बोला है कि इसके हिसाब से आप हमें आंसर चेक करना है। तो कंप्रेशन, अच्छा, इन्होंने बोला है कि रिवर्स ब्रेटन जूल साइकिल में कंप्रेशन कहाँ होता है। तो कंप्रेशन आपका कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, मतलब 3। हीट रिजेक्शन का होता है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबोरिक 1। एक्सपेंशन क्या होता है, भी आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंथैल्पिक तो VCRS में हो सकता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और ये भी आपका आ जाएगा 1। ठीक है ना, 3131 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे हमारा आइसोथर्मल का और आइसेंथैल्पिक का रोल ही नहीं था, है ना। कंफ्यूजन में नहीं रहना। ओके, ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Which is the most suitable type of air refrigeration system for supersonic plane? For supersonic plane with Mach number 3। हमने बताया था कि जो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, बूट स्ट्रैप सिंपल इवेपरेटिव या रीजनरेटिव या बूट स्ट्रैप इवेपरेटिव या इसके बाद रिड्यूस्ड एम्बिएंट, ये सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिपेंड करते हैं लोड क्या है। और लोड के लिए डिपेंड करता है
कि आपका मतलब आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका, सॉरी, जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका स्पीड क्या है और वहाँ पे डिमांड क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो इसका स्पीड है वो 3 मैक नंबर है। मैक नंबर जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन साउंड वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैक नंबर 3 है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ साउंड वेलोसिटी। उसके लिए इन्होंने बोला है कि क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा बूट स्ट्रैप। तो यहाँ पे इफेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो है क्या है? बूट स्ट्रैप इवेपरेटिव। ये यहाँ पे इन इन चारों में आपको मोस्ट इफेक्टिव ये है, मोस्ट कूलिंग इफेक्ट यही प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे टिक किया। अदरवाइज एक्चुअली जो होता है इसका आंसर होता है आपका क्या? रिड्यूस्ड एम्बियंट। रिड्यूस्ड एम्बियंट जो होता है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रिड्यूस्ड एम्बियंट, ठीक है ना? रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता पांचवा तो हम इसे क्लिक करते हैं। ओके, अदरवाइज इन चारों के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है, तो हमने क्या किया? इसे सेलेक्ट किया। क्लियर है? तो ये किस पे डिपेंड किया? ये आपका मैक नंबर पे डिपेंड। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। While designing the refrigeration system of an aircraft, prime consideration is that the system has high COP, सिस्टम का COP ज़्यादा हो, high pressure per ton, weight of the refrigerant circulated in the system is low, weight of the refrigerant circulated in the system is low। कह रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वेट कम हो। लास्ट ऑप्शन इज वेट ऑफ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज लो। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या बताया था जब कंपैरिजन कराया था? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या रिवर्स ब्रेटन साइकिल सिस्टम और आपका वीसीआरएस पे कंपैरिजन कराया था, तो यही बोला था कि जो वेट पर टन ऑफ कूलिंग इफेक्ट है वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल में कम है, इसीलिए वो एयरक्राफ्ट में प्रेफर किया जाता है। ओके, तो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, so once again, happy Diwali to all of you. So thank you so much. Let's crack GATE and ESA exam with this platform. Subscribe our channel and also join our Telegram group. Please hit the bell icon button. This is my code. Use this code to take subscription. And if you have any kind of issue, then please mention in comment section box. Okay. So thank you so much. Thanks to all of you. Good night. Once again, happy Diwali to all of you so much.